हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिमूव चाइना ऐप की कंट्रोवर्सी क्या है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि प्ले स्टोर पे एक नया एप्लीकेशन आया था रिमूव चाइना ऐप नाम का, जिसको अब प्ले स्टोर ने हटा दिया। चलिए आपको बताते हैं ये एक्चुअल कंट्रोवर्सी है क्या। तो दोस्तों, ये विवाद तब शुरू होता है जब चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हमारे पैंगोंग सो लेक के पास अपना कैंप लगा लेती है। चाइना की इस हरकत को देखते हुए हमारे देश के लोगों में गुस्सा व आक्रोश की भावना जाग उठी। पहले देखते हैं हमारे आर्मी चीफ एमएम नारवाने का इस बारे में क्या कहना है। As far as the situation on the northern borders is concerned, as you are aware that the LAC is not very well defined. There are different perceptions on where the LAC runs, and accordingly both sides patrol up to their accepted claim lines, and therefore when patrols reach at the same place at the same time, then such face-offs do occur. They have occurred in the past, and there is nothing new in what has happened in the last week or 10 days. It is just a matter of chance that the face-offs in eastern Ladakh and Sikkim happened during the same period, but we should not read too much into this, that is this a part of some coordinated plan or anything like that, and nor have these incidents or these face-offs any connection with any domestic or international situation as is prevailing today. These have been happening, as I said, in the past, and it has happened again now. But we will deal with it as per the protocols which have been laid down between the two countries. As tensions between India and China rise, there's an increase in anti-China sentiment among Indian smartphone users. Now, Jaipur-based startup One Touch Labs has introduced a new app called Remove China that identifies Chinese apps installed on your phone and gives you the option to uninstall it. Available only on Android, the Remove China apps has rapidly climbed the charts and has crossed over 1 million downloads. Once installed, the app scans all installed applications on your phone and gives you a quick option to easily remove any Chinese app that it detects. The company claims the Chinese app detection is based on market research, and the app cross-references all installed apps on your phone with their database. However, as the name suggests, it only recognizes apps that are developed by Chinese companies, and users can further uninstall them through Remove China apps. The viral Remove China Apps Android application has been removed from the Google Play Store. The app recently managed well over 5 million downloads before being pulled from the App Store. Remove China Apps, which has been making headlines for the past few weeks, has been removed for violating Play Store's deceptive apps behavior policy. Under the policy, Google doesn't allow apps that mislead and encourage users into uninstalling third-party applications. Remove China Apps was launched amid growing anti-China sentiment following the coronavirus pandemic and increasing border tensions. दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि चाइना गूगल और एप्पल को कंट्रोल करता है? आइए देखते हैं। जैसे ही ये ऐप पॉपुलर होने लगी, जो चाइना का न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, आपको मालूम होना चाहिए ग्लोबल टाइम्स के बारे में। ग्लोबल टाइम्स चाइना के ही द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला उनका स्टेट न्यूज़पेपर है। वहां पर एक हेडलाइन आती है, इंडियन सॉफ्टवेयर रिमूव चाइना ऐप लाइकली टू ड्रॉ पनिशमेंट फ्रॉम चाइना, कि अगर ये चीज़ इंडिया बेसिकली कंटिन्यू रखती है तो यहाँ पर भारत को कुछ पनिशमेंट झेलनी पड़ सकती है चाइना से। रिमूव चाइना ऐप इज द सेकेंड एप्लीकेशन आफ्टर मित्रों ऐप विच वॉज डिलीटेड लास्ट वीक बाय गूगल। तो ये रिमूव चाइना ऐप हाल ही में डिलीट की गई है। उसके बाद मित्रों, उसके जस्ट पहले मित्रों ऐप को भी डिलीट किया गया था। ठीक है, ये दृश्य आप देख सकते हैं। ये टिकटॉक की रेटिंग यहाँ पे 1.2 थी। ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद इसकी रेटिंग 4.4 कर दी गई। यहाँ पे 28 मिलियन रिव्यूज़ थे, फिर ये 20 मिलियन रिव्यूज़ हुए। इस चीज़ को यहाँ पर रिव्यूज़ को डिलीट किया गया गूगल के द्वारा। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि वाई इज़ गूगल सपोर्टिंग चाइना। हम दो चीज़ें देख चुके हैं कि गूगल इज़ डेफिनेटली नॉट सपोर्टिंग इंडियन ऐप्स, बट इट इज़
actually supporting Chinese apps. It is true that Google does not operate in China, but Google's eyes is on China, seeing a huge market base. तो बिल्कुल एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से Google यहाँ पे काम कर रहा है और उसी के अनुसार जो है वो एक ह्यूज मार्केट बेस को देखते हुए चाइना की ऐप्स को सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि इवन लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप सेड अबाउट द लिंक्स ऑफ गूगल एंड चाइना, 2019 का डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं, जुलाई 16 2019, billionaire tech investor Peter Thiel believes Google should be investigated for treason. He accuses Google of working with the Chinese government. A great and brilliant guy who knows this subject better than anyone. The Trump administration will take a look. ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। Trump calls for inquiry into Google's work with China. उसके बाद ये हाल ही में कुछ दिन पहले यूएस के एक रिप्रेजेंटेटिव केन बक, उन्होंने एक बिल को पेश किया टू बैन टिकटॉक ऑन गवर्नमेंट डिवाइसेस। तो ठीक है, तो टिकटॉक को के खिलाफ बेसिकली यूएस ने यहाँ पे आवाज़ उठाई है और गूगल के भी खिलाफ यूएस ने यहाँ पे आवाज़ उठाई थी, पिछले साल की बात है ये। ठीक है, अब यहाँ तक बात थी गूगल की। एप्पल ने भी सिमिलर चीज़ की। अक्टूबर 2019 में बेसिकली उन्होंने, अगर आपको ध्यान होगा, हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे थे, इस पर भी कई वीडियोस हमने कवर की हैं। हांगकांग में जो प्रोटेस्ट लास्ट ईयर चल रहे थे कोरोना वायरस के शुरू होने से पहले, जिसको हम एंटी एक्स्ट्राडिशन बिल के प्रोटेस्ट बोलते हैं, ये एंटी एक्स्ट्राडिशन बिल के जो प्रोटेस्ट थे, इस प्रोटेस्ट को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाई गई थी जिसका नाम था HK Map Live। ठीक है, इस वाली ऐप के ऊपर जो लोगों का रिएक्शन था, पीपल बिलीव दैट HK Map Live ऐप इंप्रूव्स द पब्लिक सेफ्टी एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली उनका बिलीफ ये था कि हमें फ़ायदा हो रहा है इस ऐप से। लेकिन अमेरिकन कंपनीज इंक्लूडिंग एप्पल, दे हैव कम अंडर रिलेंटलेस प्रेशर फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट इन रीसेंट डेज फॉर द सपोर्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट इन हांगकांग विच चाइना हैज़ पेंटेड एज अ डेंजरस सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर चाइना ने इसके ऊपर बहुत प्रेशराइज किया एप्पल के ऊपर और इस ऐप को यहाँ पे रिमूव करवाने में वो सफल रही। ये दो चीज़ें आपके सामने हुई। एप्पल ने तो क्लैरिफिकेशन अपनी अक्टूबर में ही दे दी थी, ठीक है, लेकिन गूगल ने अपनी क्लैरिफिकेशन जो कि हाल ही में किया, उन्होंने अभी दिया है। गूगल सेड दैट द ऐप रिमूवल्स गार्नर्ड पर्टिकुलर अटेंशन इन इंडिया एंड इट वांटेड टू क्लैरिफाई इट्स एक्शंस। अकॉर्डिंग टू गूगल, जो गूगल का प्ले स्टोर है, इट वाज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एक्सपीरियंस फॉर इट्स यूजर्स व्हाइल आल्सो गिविंग डेवलपर्स द प्लेटफॉर्म दे नीड टू बिल्ड सस्टेनेबल बिजनेस। तो उन्होंने बेसिकली ये यहाँ पे बोल दिया है कि इसकी आड़ में बोला है कि वी वांट टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एक्सपीरियंस टू अवर यूजर्स। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जो नेटिजन्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की गूगल के इस मूव की। दे क्रिटिसाइज द मूव ऑफ द टेक जायंट एंड डिस्प्लेड देयर एंगर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस मीम्स। उन्होंने बोला ये बिक चुका है, गूगल इंडियंस आर एंग्री आफ्टर चाइना प्ले स्टोर टेक्स डाउन रिमूव चाइना ऐप्स। ठीक है, गूगल ने जस्टिफिकेशन दी है, हमने हाल ही में नीति का उल्लंघन करने के लिए कई ऐप्स को निलंबित किया है, यानी कि सस्पेंड किया है, कि हम किसी ऐसे ऐप को अनुमति नहीं देते हैं जो उपयोगकर्ताओं को तृतीय पक्ष एप्लीकेशन को हटाने या अक्षम करने या डिवाइस सेटिंग या सुविधाओं को संशोधित करने में प्रोत्साहित करता है। यानी कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो, ठीक है, कोई या फिर डिवाइस सेटिंग के साथ कोई एप्लीकेशन छेड़छाड़ करती हो, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं जब तक कि ये एक सत्यापन योग्य सुरक्षा सेवा का हिस्सा नहीं है। यानी कि जब तक ये एक वेरीफाइबल सिक्योरिटी सर्विस का हिस्सा नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने फर्दर ये भी कहा है, व्हेन एप्स आर अलाउड टू स्पेसिफिकली टारगेट अदर एप्स इट कैन लीड टू बिहेवियर which we believe is not in the best interest of our community of developers and consumers. We have enforced this policy against other apps in many countries in the past as well, just as we did over here. तो गूगल ने अपनी जस्टिफिकेशन यहाँ पर दे दी है। खैर, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर टिकटॉक की ऐप के ऊपर से कमेंट्स डिलीट क्यों किए? अ स्पोक्सपर्सन फॉर गूगल सेड इट हैज़ टेकन करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो अगेन बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने करेक्टिव एक्शन लिया है। व्हेन वी लर्न ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ स्पैम अब्यूज वी रिव्यू एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू रिमूव इनअप्रोप्रिएट रेटिंग्स एंड कमेंट्स, ही एडेड। तो इनअप्रोप्रिएट कहकर इनके रेटिंग्स और कमेंट्स को यहाँ पर टिकटॉक के कमेंट्स को डिलीट किया गया है। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा विद अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या गूगल और चाइना मिले हुए हैं? क्या गूगल और एप्पल को चाइना कंट्रोल करता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शंस में दीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। वंदे मातरम।